हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल। मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हमने जैसे एक एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर अपनी वीडियो सीरीज और वीडियो शुरू कर रखी है। तो हमने उसमें अपने कई वीडियोज लॉन्च भी कर दिए हैं ऑन दिस 9 एंड 9C के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैंडेटरी वर्सेज ऑप्शनल टेबल ऑफ जीएसटी 9C इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सीरीज और वीडियो ऑन जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें जो आज का वीडियो है उसमें हम जो 9C के टेबल्स हैं वन बाय वन देखेंगे, कौन सा टेबल मैंडेटरी है, कौन सा टेबल ऑप्शनल है। देखते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल है। फाइनेंशियल ईयर मैंडेटरी, जीएसटी मैंडेटरी, देन लीगल नेम ट्रेड नेम मैंडेटरी, देन आर यू लायबल टू ऑर्डर अंडर एनी एक्ट, दिस इज आल्सो मैंडेटरी। दिस इज बेसिक डिटेल, नो इशू अबाउट दैट। देन कम्स टू टेबल नंबर 5A। अगर आप डिस्कशन हर टेबल में क्या एंट्री डालनी है, कहाँ से उसका सोर्स है, जहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो हम उसमें अपना पिछला वीडियो रिलीज कर चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल टेबल्स ही देखेंगे। 5A talks about turnover as per audited financial statement for the state or UT. This table is mandatory. Then 5B, unbilled revenue at the beginning of the financial year. This table is optional and can be merged with table 5O. This is the first option given to assessee for under 9C, which table is optional, which is not. This is the first option given to assessee for 5B. Then 5C, unadjusted advances at the end of financial year. This table is mandatory. Then 5D, deemed supply under schedule 1. This table is also mandatory. Then 5E, credit notes issued after the end of the financial year but reflected in the annual return. This table is mandatory. Then 5F talks about trade discounts accounted for in the audited financial statements but are not permissible under GST. This table is also mandatory. Then 5G, turnover from April 17 to June 17. This table is not applicable before because it talks about turnover from the first quarter of financial year 17-18. Then table 5H, unbilled revenue at the end of the financial year. This table is mandatory. Then 5I, unadjusted advances at the beginning of the financial year. This is also mandatory. 5J, credit notes accounted for in the audited financial statements but are not permissible under GST. Mandatory है. 5H, it talks about adjustments on account of supply of goods by SCI units to DTA units. This table is also mandatory. Then 5L, turnover for the period under composition scheme. This period is also mandatory. This table is also mandatory. 5M talks about adjustments in turnover under section 15 and rules thereunder. Mandatory है ये table भी. 5N, adjustment in turnover due to foreign exchange fluctuations भी mandatory है. Then 5O and P, adjustments in turnover due to reasons not listed above, or 5P talks about annual turnover after adjustments as above. This table is also mandatory. 5 keyword are turnover as declared in GST 9 and 5 are any unreconciled turnover. These tables is also mandatory. अगर कोई आपके पास ऐसी information है तो आपको इसमें डालनी पड़ेगी. These tables cannot be merged with any other table. रीजंस 6 टेबल बात करता है रीजंस के बारे में। अगर कोई आपका 5 में डिफरेंस आया तो इसमें डालना, ये मैंडेटरी है। तो हम एडवाइस भी करते हैं इसमें, जो आपका अगर कोई डिफरेंस है टेबल नंबर 5 में तो इसमें डिटेल में डाल दें, उससे हमें फ्यूचर में आसानी रहेगी। देन टेबल नंबर 7, रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। मैंडेटरी है ये टेबल। 7A, एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स फ्रॉम 5P, जो हमने ऊपर टेबल नंबर 5 डिस्कस किया था उसके 5P से आती है इसकी इन्फॉर्मेशन, मैंडेटरी है। 7B, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी नो सप्लाई टर्नओवर, ये भी मैंडेटरी है। देन 7C, जीरो डेट सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मैंडेटरी है। 7D, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन आरसीएम बेसिस, मैंडेटरी है ये टेबल भी। 7E टॉक्स अबाउट टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट अबव। ये टोटल है, ऑटोमेटिक भी है और मैंडेटरी भी है, क्योंकि ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन का ये सम प्लस माइनस करके इन्फॉर्मेशन आएगी। देन 7F and G, टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न जीएसटी 9। 7G, अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर EF minus E. So both these tables are also mandatory. Table number 8 talks about reasons. अगर आपका कोई टेबल 7 में डिफरेंस आया है तो उसका रीजन हमें देना पड़ेगा, यहाँ मैंडेटरी है। नहीं भी देंगे तब भी चल सकता है, बट नॉन एडवाइजेबल आप रीजंस का दीजिए। दैट्स व्हाई वी मेंशनड इट एज मैंडेटरी टेबल। टेबल नंबर 9, रिकंसिलिएशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। दिस टेबल इज ऑल्सो मैंडेटरी। हमें जो लाइबिलिटी वाइज रेट वाइज लाइबिलिटी है वो इसमें दिखानी है कि हमने कितनी कितनी टर्म सप्लाई करी है किस रेट वाली। देन 9A2O, रिकंसिलिएशन रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन, मैंडेटरी है। जो हेड वाइज आपकी लाइबिलिटी जिस रेट वाइज है इसमें डिस्क्लोज कीजिए, सो दैट आपकी क्रॉस लाइबिलिटी एग्रीगेट लाइबिलिटी मैच कर सके। 9B टॉक्स अबाउट टोटल अमाउंट टू पेड एज पर टेबल्स अबव, जो हमने पीछे डिस्कस किया उसको मैंडेटरी है। Q&R, टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न एंड अनरिकंसाइल्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट इज अंडर 9R. Both these tables are also mandatory. टेबल नंबर 10 अबाउट टॉक्स अबाउट एनी रीजंस फॉर अनरिकंसाइल्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट। जो 9 टेबल है उसमें कोई अगर आपका डिफरेंस आया है तो उसके रीजन आप यहाँ दीजिए, मैंडेटरी है।
ये आप नहीं भी भरेंगे टेबल, जो रीजंस हैं कोई, तब भी आपके 9C सबमिट हो जाएगी, बट हम इसे एडवाइस नहीं करते कि ना भरो। अगर कोई आपका डिफरेंट रीजन डिफरेंस आ रहा है तो इट इज एडवाइजेबल कि उसके रिस्पेक्टिव रीजन वाले कॉलम में आप उसका मेंशन कर दें, दैट विल बी बेटर फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट। देन टेबल नंबर 11, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। अगर कोई आपकी लाइबिलिटी है तो इसमें दिखानी पड़ेगी, पेबल जो है पे नहीं हुई तो मैंडेटरी टेबल है। टेबल नंबर 12, रिकंसिलेशन ऑफ नेट आईटीसी, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी। टेबल नंबर 12A, इट टॉक्स अबाउट आईटीसी अवेल्ड एज पर बैलेंस शीट्स फॉर द स्टेट और यूटी, यस मैंडेटरी है ये टेबल। 12B, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल, मैंडेटरी है ये टेबल भी। 12C, ITC booked in current financial to be claimed in subsequent financial, this table is also mandatory। अगर कोई आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ITC है, तो आपको यहाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देन 12D, ITC availed as per audited financial statements और books of accounts, yes mandatory है। 12E and F, ITC claimed in annual return, that is GST 9। 12F, unreconciled ITC mandatory है। 13 talks about reasons for unreconciled difference in ITC, जो 12 नंबर टेबल नंबर 12 में अगर कोई आपका रीजन आ गया, डिफरेंस आ गया, तो उसका रीजन आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। टेबल नंबर 14A to 14Q, reconciliation of ITC, this table is optional। दिस आर सेकंड ऑप्शन गिवन इन दिस 9C। पहले हमने पहले 5 नंबर टेबल में थी एक ऑप्शन, और ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप ना भी भरो, कहीं भी मर्ज करने की रिक्वायरमेंट वो नहीं है, ऑप्शन टेबल है, आप डालना है इन्फॉर्मेशन डाल दो, नहीं तो तब भी चल जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी बिल, जो 14A से लेके क्यू तक ऊपर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, ये उसका सम टोटल है, और आप इसमें ऑटो पॉपुलेट भी और डाल भी सकते हो इन्फॉर्मेशन, देन इट इज not to worry about it। 14S and T, 14S talks about ITC claimed in annual return, that is GST 9, और 14T talks about unreconciled ITC, these tables are mandatory। और 15 इज रीजंस फॉर, अगर के ऊपर आपका 14 नंबर में डिफरेंस आ गया तो उसके रीजन है, ये हमें बिल्कुल डालने चाहिए, मैंडेटरी है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, एडवाइजेबल है कि आप इसको डालिए, इस रीजन को, कोई भी रीजन हो। टेबल नंबर 16 टॉक्स अबाउट टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी, अगर कोई आपका ऐसा पेबल है, डिफरेंस निकला है आईटीसी में, तो ये टेबल मैंडेटरी है। देन पार्ट बी टॉक्स अबाउट एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, अगर भी आपकी ऐसी लाइबिलिटी है जो नॉन रिकंसिलेशन करके आपको लग रहा है एडिशनल लाइबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मैंडेटरी टेबल है। देन वेरिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, विदाउट वेरिफिकेशन वी कैन नॉट सबमिट दिस 9C, राइट। तो ये हमने सारे टेबल जो 9C के हैं वन बाय वन डिस्कस किए, तो हमें उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा टेबल मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है। तो और हमारे हमने बाकी जैसे पहले ही बताया कि GST 997 पहले भी कुछ वीडियोस रिलीज करे हैं, तो आप फॉर एनी क्लैरिफिकेशन आप उनको भी चेक कर सकते हैं। फर्दर हमें आई एक्सपेक्ट कि आपको यार ये वाला वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू लाइक द वीडियो जो ये वाला हमने डाला है, और एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल CA हितेश गुल ऑन GST फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।